अभी तक तो हम इनको खदेड़ रहे थे, लेकिन अब ये नया नक्शा है। इस नए नक्शे में पैलेस्टाइन के लिए और फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह है ही नहीं। हम नरसंहार के पक्ष में भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब फिलिस्तीनी आवाज का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है तो जरूरी है कि हम अपनी सारी जुबानों में उस आवाज को ले जाएं। Before I even start to speak, I would just like to say that there's one person's presence whom we are all missing here in this People for Palestine, India for Palestine meeting, and that is Prabir Puryakas. And you know that he was, well, I don't need to tell you about his commitment to this cause and what he did to fulfill that commitment. He's not here with us today. He's fighting a very big battle and we are all with him in solidarity, but we do miss him today. I just wanted to say that. Many people are asking, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये अमेरिका बार बार पैलेस्टाइन के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इजराइल के पक्ष में इस्तेमाल करता है. That's a very big question that many people ask, because there is still an illusion that it's the land of the free and the home of the brave and all that. Therefore human rights, therefore democracy, the US stands for all these things. तो ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब हम कहते हैं कि क्यों अमेरिका बार बार वीटो कर रहा है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि साम्राज्यवाद क्या है. आज उसका नकाब अगर कभी था तो वो बिल्कुल गिर गया है, उसका घिनौना चेहरा बिल्कुल सामने है और वो बता रहा है कि ये है साम्राज्यवाद. हम नरसंहार के पक्ष में भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अगर नरसंहार करने वाला हमारे पक्ष में हो, हमारे पक्ष का हो. तो ये जो इजराइल बनाया ही गया था, उसके जन्म को अगर हम देखें तो वो साम्राज्यवाद का एक टापू के रूप में बनाया गया था, जानबूझ करके. Somebody said, I saw an interview today, some people suggested we can go to Uganda. There's no question of you going to Uganda. You have to go there. You know, the imperial outpost of imperialism, उसका जो नक्शा है वो भी एक चाकू की तरह है जिसकी नोक अरब दुनिया के दिल की तरफ है. ये उनके तेल पर नियंत्रण रखने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी. बहुत से लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, बहुत से लोग सालों से कह रहे हैं आप लोग तो साजिशों की बात बहुत करते हैं, कंस्पिरेसी थियरीज की बात बहुत करते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को अब सच मानने के लिए दुनिया के जो लोग शांति चाहते हैं वो मजबूर हो रहे हैं, और जो ये असली चेहरा है साम्राज्यवाद का उसको भी लोग अब पहचानने लगे हैं. The mask has fallen off and the real face of imperialism is there for all of us to see. They will go to any lengths to defend that outpost of theirs which was deliberately created. और यहाँ पर मैं बच्चों को भी बताती हूँ और वो उनको ताज्जुब होता है कि आपको याद करना चाहिए कि 1948 में in 1948 there was no country known as Israel in this world. वो पैलेस्टाइन था. There was only a country called Palestine. लेकिन लगातार उसका नक्शा इजरायली हुकूमत की तरफ से, मतलब even Ben Gurion had a Palestinian passport. But that map of Israel has been consistently changed by the Israeli government. उस नक्शे को लगातार बदला गया है और जो पैलेस्टीनियंस की का अनुपात है उस जनसंख्या में वो करीब करीब 70% है. लेकिन धीरे धीरे वो नक्शा इस तरह से बदला गया कि 70% लोगों को करीब करीब 25% जमीन में घेर करके एक सर्वे के अंदर बंद करके रखा गया और 25% लोगों के हाथ में 75% जमीन आई. सो पैलेस्टाइन वाज द कंट्री. Israel did not exist in 1948. There was only Palestine. But regularly the government of Israel has been changing that map, altering that map, and over the years, a large section of the population, about 70% of the people who happen to be Palestinians, have been just herded into about 20% of the area from where now they want to throw them out even further. तो ये जो इजराइल
कि हमेशा से इनका इरादा रहा है, और जिस इरादे का मतलब कभी कभी कुछ अच्छी बातें कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स वगैरह ने कहा, oh, you're going too far, you shouldn't do this, you're naughty boys, now we're not going to allow it. But they never really intervened to stop this process of altering that map. And finally, you know, now Mr. Netanyahu stands up and says, well, now here's the new map. And in this new map, there is no Palestine. There is no Palestine. And that is what we must remember before we start talking about October 7th and this, that and the other, because this is what their intention was. Their intention was very clear. जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अब ये नया नक्शा है, अभी तक तो हम इनको खदेड़ रहे थे, लेकिन अब ये नया नक्शा है, इस नए नक्शे में पैलेस्टाइन के लिए और फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह है ही नहीं, अब इजराइल ही इजराइल बचेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे सामने हकीकत है, अब हो क्या रहा है? वी आर सीइंग व्हाट the US is doing, we are seeing what the UK was doing. 2 days back they abstained, 2 दिन पहले उनको भी थोड़ी सी शर्म आई, इंग्लैंड को उन्होंने तटस्थ रहने का फैसला लिया। फ्रांस और जर्मनी जो पहले अमेरिका का साथ देते थे, अब वो भी थोड़ा सा पीछे हटने लगे हैं। So this is happening, and this is happening because of the pressure of the people. This is happening because of the pressure of the protests of the people who are standing up for the Palestinians. And I would like to add here that some people look at this conflict as a religious conflict. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई एक धार्मिक टकराव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचने से हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और जो लाखों जूइश मूल के लोग पूरी दुनिया में उनके साथ आज खड़े हैं, उनके साथ भी घनघोर नाइंसाफी कर रहे हैं। हम सब लोग महमूद दरवेश और एडवर्ड सईद के साथ बड़े हुए हैं, इसलिए फ़िलिस्तीन एक तरह से हम सब के वजूद का हिस्सा है। और इस वजह से जब हम आज ये सुनते हैं कि फ़िलिस्तीन खाली ज़मीन थी, कोई वतन नहीं, कोई मुल्क नहीं, किसी मुल्क के होने का गवाह उसकी शायरी है। और फ़िलिस्तीनी शायरी पूरी दुनिया की हर ज़ुबान में अब मौजूद है, और इस वजह से हम उसे हिंदी में लाए, क्योंकि जब फ़िलिस्तीनी आवाज़ का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है तो ज़रूरी है कि हम अपनी सारी ज़ुबानों में उस आवाज़ को ले जाएं। मैं उसमें से सिर्फ एक कविता पढ़ रहा हूँ जो ज़कारिया मोहम्मद की है। अरबी से अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा किया है दीना तुफ़ाहा ने, और हिंदी में निधीश त्यागी और मैंने अनुवाद किया है। कविता का काम आंसू पोंछना नहीं है। वह रो रहा था, इसलिए उसे संभालने के लिए मैंने उसका हाथ थामा, और आंसू पोंछने के लिए मैंने उससे कहा, जब दुख से मेरा गला रुंध रहा था, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इंसाफ जीतेगा आखिरकार और अमन जल्दी ही कायम होगा। जाहिर है मैं उससे झूठ बोल रहा था। मुझे पता था कि इंसाफ नहीं मिलने वाला और अमन जल्दी नहीं आने वाला, पर मुझे उसके आंसू रोकने थे। मेरी ये समझ गलत थी कि अगर किसी चमत्कार से हम आंसुओं की नदी रोक लें तो सब कुछ ठीक ठाक तरह से चल निकलेगा, फिर चीज़ों को हम वैसे ही मान लेंगे जैसी वे हैं। बेरहमी और इंसाफ एक साथ मैदान में घास चरेंगे, ईश्वर शैतान का भाई निकलेगा और शिकार हत्यारे का प्रेमी होगा। पर आंसू रोकने का कोई तरीका नहीं है, वे बाढ़ की तरह लगातार बहे जाते हैं और अमन की रवायतों को तबाह कर देते हैं। और इसलिए आंसुओं की इस कसैली जिद की खातिर आइए आँखों का अभिषेक करें इस धरती के सबसे पवित्र संत के रूप में। कविता का काम नहीं है आंसू पोंछना, कविता को खाई खोदनी चाहिए जिसका बांध वे तोड़ दें और इस ब्रह्मांड को डुबा दें।